Right, Bismillahirrahmanirrahim. आज what we are gonna do is that uh, आज we'll start with a question. तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। कल हमने क्या किया था? All we did yesterday was we did the Calvin cycle and also some part of the non-cyclic photophosphorylation in the light dependent stage. कैल्विन साइकिल में हमने देखा था कंटिन्यूअस रिएक्शंस होते हैं क्योंकि एक साइकिल है जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होना, उसको फिक्स कर देना रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ, विच इज द रिएक्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है ऑब्वियसली, हेंस द नेम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। दिस रिएक्शन इज एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड बाय रुबिस्को, जिसकी वजह से पीजीए बनता है। वहां से जीपी बनता है। जीपी से टीपी बनने के लिए रिडक्शन का प्रोसेस होता है, because of which NADPH and ATP is used. And then from TP, okay, some of GP is used for amino acid की synthesis, while remaining is partaking in further in the Calvin cycle, मतलब वो TP बन जाता है। फिर 1/6 of total TP molecules produced is producing glucose, and then the remaining is used in the Calvin cycle. हमने हर उसके कार्बन, जो हर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, उसके कार्बन अमाउंट भी देखी थी कि उसमें कार्बन कंपाउंड, वो कितने नंबर का कार्बन कंपाउंड है। And then we also looked at the calculation that if 1/6 of the total ATP is used each time a Calvin cycle is turning, and it is used for producing glucose, so the Calvin cycle has to turn 6 times in order to produce one molecule of glucose. क्योंकि 6 साइकिल का मतलब होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स फिक्स हुए। And just like we proved for carbon, we also then proved for hydrogen using the 12 hydrogen released when the 12 NADPH are oxidized to 12 NADP and 12 hydrogen are reduced during the reduction state. कल तक हम यहाँ पे रुक गए थे। आज इंशाल्लाह I'll start with firstly, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ and I would want you to answer this. मैं पिक्चर भी है इस क्वेश्चन के साथ, it's a past paper question, and let's see what the answer comes out to be. With reference to figure 1.1, मैं वो फिगर अभी पेस्ट करता हूँ। Explain how the structure of the cell of this cell is related to its function in photosynthesis. अब ये जो है ना सवाल, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एएस एंड ए टू बायोलॉजी। एएस में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर यू वुड हैव लर्न द पैरासाइट मेसोफिल लेयर, द स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर, एंड देन द इंटायर, पूरे जो प्लांट का सेल होता है उसका भी पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट असिस्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो कुछ पार्ट एएस का इसमें, कुछ पार्ट व्हाट वी हैव लर्नड इन द पास्ट फ्यू क्लासेस ए टू का। मैं फिगर पेश कर देता हूँ एंड देन यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। इट्स अ 3 mark क्वेश्चन।
Yes, I'm done. All right, so could you tell me the 3 points? Okay, so basically the cell contains many chloroplasts that have chlorophyll to absorb light energy needed for photosynthesis. The large central vacuole maintains the turgor pressure and keeps the cell firm, pushing the cytoplasm with its chloroplast close to the cell wall for maximum light absorption. And then also it could be that the thin cell wall and the thin surface membrane, they allow for easy diffusion of carbon dioxide into and out of the cell. Right. So, सबसे पहला point, high amounts of chloroplast present, which means that photosynthesis takes place in a greater amount. That was your first point, correct? Was that your first point? Yeah, it was. Right. तो ये पहला point तो बिल्कुल सही है कि there is a high amount of chloroplast present, जिसकी वजह से जो photosynthesis है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. अच्छा. So that's one mark right there. दूसरा mark, he said that the large central vacuole maintains, or because of its turgor pressure, pushes the chloroplast towards the cell surface membrane, allowing for maximum light energy to be absorbed towards the cell wall. तो अगर क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल की तरफ पुश हो जाएंगे तो मैक्सिमम लाइट एनर्जी कैसे अब्सॉर्ब होगी? Because it's going to be closer to the surface of, I think, the leaf. I think. तो ये जो सेल है, दिस इज अ पैलिसेड मेसोफिल सेल, और यस, एंड दिस इज इन द पैलिसेड मेसोफिल लेयर, और ये वो लेयर होती है जो कि किसी लीफ में सबसे ऊपर की तरफ होती है, मीनिंग इट इज द वन विच इज मोस्ट एक्सपोज टू द लाइट. तो ये जो चीज है कि क्लोरोप्लास्ट अगर सेल वॉल के करीब जाएंगे तो ज्यादा लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, नो, दैट्स ऐसे नहीं होता. द पॉइंट इज करेक्ट कि जो वैक्यूल है, इट पुशेस द सेल वॉल टूवर्ड, इट पुशेस द क्लोरोप्लास्ट टूवर्ड्स द सेल वॉल. उसका जो फायदा है वो दूसरा है, एंड उसका फायदा ये है कि इट अलाउज फॉर अ शॉर्टर डिफ्यूजन पाथवे ऑफ गैसेस. अब अगर जो बाय प्रोडक्ट क्लोरोप्लास्ट में बना था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट में से निकलेगा, बट बिकॉज दिस क्लोरोप्लास्ट इज सो क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल वॉल, बिकॉज ऑफ द वैक्यूल का टर्गर प्रेशर जो वो आउटवर्ड्स एक्सर्ट करता है, ये गैसेस का शॉर्ट डिफ्यूजन पाथवे होगा. सो इट अलाउज फॉर अ शॉर्ट diffusion pathway. So while the explanation behind it is correct, not the explanation, while the reason is correct because of the vacuole, लेकिन उसकी जो वजह बनती है, the explanation on why it helps, ये वो गलत है. This is the right one. और जो तीसरा था, could you repeat your third point? Yeah, the third point was that basically the thin cell wall, it allows for the, I think, efficient absorption of carbon dioxide. I think that's what I said. Right. So जो भी अगर किसी भी प्लांट सेल को देखते हैं, so for any plant cell, वो प्लांट सेल में स्टोमेटा होता है. So you're aware of the stomata? I think, wait a तो minute. ये Yeah, wait. It's basically on the surface, you know. सो इट्स फॉर किसी भी लीफ को अगर हम देखें एक प्लांट में, तो ये नीचे की तरफ होता है या ये ऊपर की तरफ होता है. एंड इसका बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोमेटा की, दैट इज सिंपली गैस एक्सचेंज को अलाउ करने देने के लिए. तो ये जो स्टोमेटा होता है किसी भी लीफ में, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लीफ, उसके अंदर का स्ट्रक्चर्स एंड देन आई पेस्ट इट, सो ज्यादा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए. गिव मी अ सेकंड. राइट, ये मेरे पास लीफ का स्ट्रक्चर आ गया, एंड इसको मैं पेस्ट कहाँ से करूँ? Okay, I can take a screenshot and then I can paste that. Right. Yeah. तो एक लीफ सेल को अगर देखें, उसमें जो स्टोमेटा होता है, इट इज मेजोरिटी टाइम्स पे फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ द लीफ. ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, इसके बॉटम पे स्टोमेटा फाउंड होता है.
और ये स्टोमेटा गार्ड सेल से होता है प्रोटेक्टेड। मीनिंग कि कुछ केसेस में देर वाज वन चैप्टर जहाँ ओके, ये A2 का चैप्टर है, वी लर्न इट आफ्टरवर्ड्स चैप्टर 15 में, कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स में। उसमें ये स्टोमेटा की बात बहुत ज्यादा डिटेल में होगी, बट इवन इन IBCSE हमने पढ़ा हुआ है द स्टोमेटा जस्ट अलाउस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव इनटू द सेल एंड ऑक्सीजन टू डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। अब कभी कभार होता है ये कि ये स्टोमेटा हो जाता है बंद। दैट इज बिकॉज द गार्ड सेल्स बड़े हो जाते हैं, द गार्ड सेल्स इंक्रीज इन साइज। बिकॉज ऑफ दिस ये जो ओपनिंग है विच वी कॉल द स्टोमेटा, ये ओपनिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि दिस इज द करंट साइज ऑफ द गार्ड सेल्स। अगर मैं गार्ड सेल्स की साइज कुछ इस तरीके की कर दूं, सो नाउ देर इज नो लॉन्गर एनी ओपनिंग, देर इज नो लॉन्गर अ स्टोमेटा, सो देर इज नो लॉन्गर गैस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस। सो द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस वाज कि स्टोमेटा क्यों होता है, गैस एक्सचेंज को होने देने के लिए। नाउ अब अगर क्लोरोप्लास्ट इस सेल वॉल के करीब आ जाएगा, तो वो आसानी से गैसेस यहाँ से डिफ्यूज होंगी एंड दे विल इजीली मूव थ्रू द स्टोमेटा। नाउ द थर्ड पॉइंट विच यू सेड कि इट विल अलाउ फॉर एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन द थिन सेल वॉल। सेल वॉल की थिकनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन स्टोमेटा से होती है, एंड सेल वॉल की थिकनेस या थिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो सेल है पिक्चर में, दिस सेल इज लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेच्ड। इस सेल को हमने स्ट्रेच किया है, इसको इस तरीके से भी स्ट्रेच किया है, इट इज स्ट्रेच्ड अपवर्ड्स एंड ऑल्सो स्ट्रेच्ड डाउनवर्ड्स। नाउ इफ आई कैन गेट एन एग्जांपल ऑफ अ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, सो इट विल अलाउ अस टू कंपेयर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल को और ये वाले सेल को। राइट, लेट मी चेक। ओके, मिल गया। ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की पिक्चर यहाँ पे आ रही है। This is how a spongy mesophyll cell looks like. Can you see this picture? Yeah, I can. तो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, जिस तरीके से हम एनिमल सेल के लिए बात करते हैं। बट नाउ लुक एट दिस सेल, दिस सेल लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड, एंड बोथ ऑफ दीज आर प्लांट सेल्स। दिस इज द पैलिसेड मेसोफिल सेल एंड दिस इज द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। तो यहाँ पे यू कैन सी इतना लॉन्गिट्यूडिनल इसका सेक्शन है पैरासाइट मेसोफिल का, लेकिन स्पॉन्जी मेसोफिल का स्फेरिकल है। क्योंकि ये सेल लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेच्ड है, इट अलाउज फॉर मैक्सिमम लाइट एनर्जी टू बी ऑब्जॉर्ब। सो longitudinally stretched, allowing for maximum light energy L dot E to be absorbed. When you sit down to do past papers for this chapter of photosynthesis, इसमें maximum questions आते हैं light limiting factors के, और फिर AS और A2 के relation के। Limiting factors is what we will start with right now. Right, so is this question clear? Yeah, it is. All right. So now we'll start with today's topic, और आज का topic है limiting factor का। Now, forget about limiting factors के types जो IGCSE में पढ़े, forget about that for a second. I'll ask you, define limiting factor. How do you define it? Basically, it's something that will it will limit, it will restrict the rate of reaction. I mean, like if something just like finishes, if the limiting factor finishes, the reaction will not occur. So basically, it restricts the reaction from occurring. So from your explanation, I understand you're trying to say कि limiting factor मतलब ऐसा factor जो rate of reaction को limit करता है, right? Yeah. And that is exactly what is meant by limiting factor. अब मैं यहाँ पे आंसर वो लिखता हूँ जो कि you will write in the exam. This is a past paper question. For every starting of a limiting factor question, define limiting factor. This is for 2 marks.
और इसकी मार्किंग स्कीम सरप्राइजिंगली एवरी सिंगल टाइम इट्स द एग्जैक्ट सेम, सेम लाइन लिखी हुई होती है, एंड इट्स ऑलवेज फॉर 2 मार्क्स, और it's in different words but it's the same concept which you just said. So it is the factor which is present in shortest supply. मतलब ये ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे कम सप्लाई में प्रेजेंट है. सो इफ देर आर लेट्स से 3 or 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इन अ प्लांट और इन एन एनिमल, तो लिमिटिंग फैक्टर उस फैक्टर को बुलाएंगे जिसकी सबसे कम सप्लाई है. तो इट इज द फैक्टर प्रेजेंट इन शॉर्टेस्ट सप्लाई, और यही वो फैक्टर है विच विल लिमिट द रेट ऑफ अ रिएक्शन. क्योंकि वो वाले रिएक्शन को अकर होने देने के लिए दिस फैक्टर नीड्स टू बी प्रेजेंट. अब अगर वो फैक्टर खत्म हो गया तो रिएक्शन होगा ही नहीं. अगर वो फैक्टर स्मॉल अमाउंट में हुआ तो रिएक्शन की जो वो है the speed of the reaction that will even be lesser, or the amount of the reaction that takes place will be lesser. This reaction is affected by more than one factor. अब सबसे पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं. इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन एंड 2 sentences. इट इज द फैक्टर प्रेजेंट इन शॉर्टेस्ट सप्लाई लिमिटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, पहला. एंड दिस रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, दूसरा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेकंड सेंटेंस एज वेल. दिस रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर. अब ऐसी रिएक्शन को लेट्स अज्यूम कि एक रिएक्शन हो रहा है प्लांट्स में, और वो रिएक्शन अफेक्ट होता है बाय ओनली वन फैक्टर. मतलब कि इफ दैट फैक्टर इज लेस इन अमाउंट, दैट विल मीन कि जो रिएक्शन हो रहा है वो भी कम होगा. अगर वो फैक्टर ज्यादा होगा तो रिएक्शन भी ज्यादा होगा. मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जो एक ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. इन दैट केस दिस विल नॉट बी नोन एज द लिमिटिंग फैक्टर, और वही यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है. लिमिटिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं जो ऐसे रिएक्शंस में होते हैं दैट आर अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर. एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जो कि बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है. सो कुड यू टेल मी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एट व्हिच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? Light intensity, temperature, carbon dioxide availability. Availability, correct. So light intensity, L dot I. No, this will become light independent. So I'll just write the whole thing. लाइट इंटेंसिटी सबसे पहला, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी, और यू कुड आल्सो राइट इट एज कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन. इट मींस द सेम थिंग. द स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट द कंसेंट्रेशन. और तीसरा, टेम्परेचर. मतलब ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. अब अगर इन 3 फैक्टर, सो सबसे पहला मुझे ये समझ आ गया कि ये एक ऐसा रिएक्शन है विच इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर. ये सेकंड लाइन करेक्ट हो गई. अब पहली लाइन, factor present in shortest supply, limiting the rate of reaction. Now, very important. At one point in time, मतलब अगर we look at one point, for example, photosynthesis 10 मिनट के लिए हो रहा है. For the first 2 minutes, or if you look at a specific section of time, a specific time interval, there will only be one limiting factor. कहने का मकसद ये है, it will never be possible that you have two limiting factors at once. No, there will only be one limiting factor at a time. अब एक फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर कब बन जाता है? सो व्हेन डज अ फैक्टर, फॉर एग्जांपल लाइट इंटेंसिटी, मैं ये कब कह सकता हूँ कि लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर है? सो व्हेन डज अ फैक्टर बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर? एंड ये बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज इन द एग्जाम यू विल बी गिवन ग्राफ्स, और ग्राफ्स की शेप को देखते हुए यू विल हैव टू से कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है. तो उसे बताने से पहले हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि फैक्टर से लिमिटिंग फैक्टर कोई कब बनता है. दैट इज व्हेन
The concentration of the factor changing results in the rate of reaction changing. I'll write this down. A factor becomes a limiting factor when the change in its concentration results in the change in rate of reaction. राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और उस ग्राफ में मैं एक्सेस सबसे पहले लेबल करता हूँ, एंड देन एट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द ग्राफ आई विल आस्क यू के लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे पहले नोट लिखता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया कि एट वन पॉइंट इन टाइम, या एट एनी पॉइंट इन टाइम फॉर दैट मैटर, एट एनी पॉइंट इन टाइम only one factor can be limiting. Sir, so basically, any reaction it can be affected by multiple limiting factors, but then not at once, right? Like, Not at once, correct. तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है which is affected by many factors, उसमें अगर at one time only one of these factors if present in the shortest supply, और उनकी जो concentration है उसके चेंज होने से रेट में भी चेंज आ रहा है, तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि ये वाला फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन अगर ये लिमिटिंग फैक्टर होगा तो ये दोनों नहीं होंगे। okay, okay. राइट, तो ये वाला पॉइंट दिस नोट वाज एट एनी पॉइंट इन टाइम ओनली वन फैक्टर कैन बी लिमिटिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हूँ। द एक्स एक्सिस इज माय लाइट इंटेंस, ये एक फोटोसिंथेसिस का रेट का ग्राफ है। सो द एक्स एक्सिस इज द लाइट इंटेंसिटी, while the y-axis is the rate of photosynthesis. So, one very important question here. X axis पे कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल? Independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मतलब क्या है? इज इट द वेरिएबल दैट वी आर मेजरिंग और द वेरिएबल दैट वी आर चेंजिंग? The variable we're changing. द वेरिएबल वी आर चेंजिंग, करेक्ट। सो दिस वेरिएबल इज बीइंग चेंज्ड। इसका मतलब कि थ्रू आउट द कोर्स और प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन हम लाइट इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, और हम मेजर करेंगे वाई एक्सिस को, that is the d dot v, dependent variable, or I'll write the full form, dependent variable। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम मेजर करते हैं, which in this case is the rate of photosynthesis. So सिचुएशन ये है, मैं थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन लाइट इंटेंसिटी को चेंज करता जाऊंगा, एंड एट एवरी पॉइंट में देखता जाऊंगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो जो ग्राफ मुझे मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। अब let me mark 2 points on the graph. This is point A, this is point B. So, my first question, at point A, is light intensity, carbon dioxide concentration, or temperature? Which one is the limiting factor? Light intensity, Light intensity. Why is that? because basically the varying light intensity is causing the change in the rate of reaction. Perfect. ये reason जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. This is what defines a factor to become a limiting factor. सो एक फैक्टर तभी लिमिटिंग हो सकता है जब अगर अगर मैं उसकी कंसेंट्रेशन चेंज करूं। सो सपोज हेयर यहाँ पे वो 10 था एंड यहाँ पे वो 15 हो गया, मैंने इसकी कंसेंट्रेशन चेंज की। क्या इसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ व्हेन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? Yeah, it did change. Yes. So meaning a change in the concentration, which in this case is light intensity, the change in the factor resulted in the change in the rate of reaction. Matlab, at point A, it is a limiting factor. So light intensity
light intensity at A is the limiting factor. पॉइंट बी पे क्या लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर होगी? No, नो, एंड व्हाई इज दैट? because it's the light intensity is constant and the rate of reaction, the rate of photosynthesis is also constant. द लाइट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे 60 लिखूं एंड देन मैं एक्स एक्सिस को बढ़ाता जा रहा हूँ Oh no, 65 the 70। rate is not changing, but the light intensity is changing. करेक्ट। रेट अगर नाउ आई कैन जज वेदर एट दिस पॉइंट क्या लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं। वेरी सिंपल, मैं लाइट इंटेंसिटी को चेंज करता हूँ, कम करता हूँ या मैं बढ़ाता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ क्या रेट चेंज हो रहा है। अगर रेट चेंज होगा तो इट इज स्टिल अ लिमिटिंग फैक्टर, रेट चेंज नहीं होगा तो इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। रियली सिंपल। तो यहाँ पे रेट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एट दिस पॉइंट इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। तो एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट बी, लाइट इंटेंसिटी तो कैंसिल आउट हो गया, वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। So one of either कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर, इनमें से कोई एक फैक्टर अब यहाँ पे लिमिटिंग होगा। कि अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, सपोज वो लिमिटिंग था, अगर मैं उसको बढ़ाता तो अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ इस तरीके का होता, एंड नॉट लाइक दिस। इफ टेम्परेचर वाज द लिमिटिंग फैक्टर नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी इस तरीके का रेट होता एंड नॉट लाइक दिस। राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट इंटेंसिटी की इस पूरे ग्राफ में बात हो रही थी। ओके, तो मैं यहाँ पे समरी लिख देता हूँ ऑफ हाउ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अ लिमिटिंग फैक्टर और नॉट। So in this case we were talking about light intensity. If the amount or the concentration, in general मैं लिख रहा हूँ, if the concentration of any factor, light intensity, temperature, carbon dioxide concentration, any of it changes, but the rate does not change, that means that this factor is not limiting. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद हो गया होगा एरोस की वजह से, तो आई एक्सप्लेन दिस अगेन। फैक्टर में कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, सो ये जो फैक्टर्स को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कंसेंट्रेशन। So if the concentration of the factor is changing, represented by the shape, but the rate is not changing, that means that this particular factor is not limiting. ये जो delta है, that means change. You would have done this in physics too. Okay. Now let me see. अगला क्या point है? अच्छा ये वाला हो गया। Okay. All right. Now we will look at कि अगर light intensity limiting factor है, तो अभी अभी हम क्या सिचुएशन बना रहे हैं कि लाइट इंटेंसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर। हमने ये अज्यूम कर लिया कि इस वक्त ये लिमिटिंग फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर आर नॉट लिमिटिंग और आर नॉट लिमिटिंग फैक्टर्स। सो ये है हमारी पहली सिचुएशन। अब we have to describe in detail what will happen or how will the rate of photosynthesis be affected. अब थ्रू दिस ग्राफ हमने ये तो बता दिया इफ इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर तो वो चेंज करेगा, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो उसके हिसाब से चेंज नहीं करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये चेंज या नो चेंज क्यों होता है? सो लेट्स से इन दिस केस द लाइट इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग। चेंज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग। उसकी वजह से होगा ये कि जो फोटो एक्टिवेशन होती है, so we are now discussing a chain of events which is happening because of the light intensity decreasing. Photo activation will take place at a slower rate. So can you tell me where does photo activation take place in the plant cell? In the cyclic photophosphorylation. Wait. Any location.
Location. Oh, okay. So it takes place in the photosystem, which is the thylakoid membrane. परफेक्ट, इट टेक्स प्लेस इन द फोटो सिस्टम जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में है। अगर फोटो एक्टिवेशन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इफ इट टेक्स प्लेस एट अ स्लोअर रेट, उसकी वजह से जो पूरा का पूरा लाइट डिपेंडेंट स्टेज का रेट है, अगर हम ओवरऑल रेट देखें पूरे के पूरे लाइट डिपेंडेंट स्टेज का, चाहे वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो या नॉन साइक्लिक हो, द एंटायर रेट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट स्टेज will decrease. If the rate of light dependent stage decreases, meaning in a given amount of time, in a constant amount of time, now there is lesser ATP plus NADPH produced. So if you remember it as a story, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. Think of it as a chain of events. मुझे कम लाइट मिल रही है, फोटो एक्टिवेशन कम होगी, लाइट डिपेंडेंट स्लो होगा, लाइट डिपेंडेंट स्लो होगा तो उसके प्रोडक्ट भी इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम कम प्रोड्यूस होंगे, which means that the rate of Kelvin cycle, the rate at which a Kelvin cycle turns completely, that decreases. So I can say the rate of light independent stage भी कम हो जाती है. क्यों? वो इसीलिए because light independent stage में भी तो ATP और NADPH required होते हैं. तो अगर उनको ATP और NADPH ही कम मिल रहे हैं तो उनका रेट भी कम हो गया. Which in turn will mean कि the amount of photosynthesis or the rate of photosynthesis will decrease. So ये पूरा जो arrows and one after the other था, the purpose of this was explaining कि we know कि light को decrease करने से photosynthesis कम होगा, लेकिन किस तरीके से कम होगा, right? ये तो थी पहली चीज. Now second thing, ये जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज है, इसमें कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं? In the independent, yeah, लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, द थ्री मेन स्टेप्स. carbon dioxide fixation and ओके. carbon dioxide fixation, the reduction of glycerate 3 phosphate, and यस. the regeneration of RUBP. द रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, करेक्ट. अगर यहाँ पे रिडक्शन कम हो जाती है, जो रिडक्शन वाला स्टेज है जहाँ पे जीपी गेट्स कन्वर्टेड टू टीपी, अगर ये रिडक्शन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, देन वॉन्ट इट रिजल्ट इन अ बिल्डअप ऑफ जीपी? Yeah, it will. क्योंकि जो रेट था अर्लियर, अगर लाइट को मैं बढ़ाता, जीपी बहुत तेज तेज टीपी में कन्वर्ट होता, लेकिन अब रिडक्शन का ही रेट कम हो गया तो जीपी स्टार्ट्स टू बिल्ड अप, जीपी की कंसंट्रेशन बढ़ती है. जीपी की कंसंट्रेशन बढ़ तो रही है लेकिन रिडक्शन तो स्लो हो रहा है ना, विच मीन्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ टीपी इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डअप क्या होता है और कम क्या होता है और क्यों होता है. सो रिडक्शन, ये मैं लिख देता हूँ, द रेट ऑफ रिडक्शन इज डिक्रीजिंग. सो व्हेन द रेट ऑफ रिडक्शन इज डिक्रीजिंग, रिएक्टेंट बहुत सारा accumulate हो गया विच इज जीपी, और वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम है विच इज टीपी. अब अगर टीपी भी कम प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर टीपी से हम प्रोड्यूस करते हैं आरयूबीपी, वो भी कम प्रोड्यूस होगा. रिबोलोज बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है और जीपी अक्यूमुलेट होता जाता है स्ट्रोमा में, which is where the Calvin cycle takes place. Now let's look at an example where कार्बन, तो दिस प्रोसेस इज ओवर यहाँ पे. अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इज द लिमिटिंग फैक्टर. सो वी लुक एट फॉर ईच एंड एवरी फैक्टर कि क्या होता है. लाइट इंटेंसिटी हमने देख लिया. इफ आई रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो क्या होगा? टेक अ गेस, व्हाट विल हैपन? I think light independent reaction में, because we're doing carbon dioxide fixation, यस, वो कम होगी because करेक्ट. the concentration is less, and एंड उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से basically GP will not be formed. GP will not be जीपी विल formed, नॉट बी फॉर्म, and करेक्ट. hence further trials phosphate and will not be formed, and RUBP will not be regenerated, I think. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. लेकिन इसमें एक चीज है जो थोड़ी सी चेंज करनी की, और वो क्या?
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होती है, यहाँ तक बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो हो रही है, अब जब रिएक्टेंट ही कम हो गया विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन भी स्लो हो जाता है, द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो रेट है दैट डिक्रीजेस। इफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेट डिक्रीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाज RuBp gets converted to Gp and Gp gets converted to sorry, RuBp gets converted to the PGA, PGA से Gp and then that's it। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अगर इसका रेट कम हो जाता है, इसका मतलब द अमाउंट और द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लिसरेट फॉस्फेट कम हो जाती है। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ये वाला जो स्टेप है RuBp से Gp जाने का, ये तो स्लो हो गया। अगर ये स्लो हो गया तो प्रोडक्ट भी लेसर प्रोड्यूस होगा, विच इज व्हाट इज रिटन है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इफ दिस इज प्रोड्यूस्ड इन अ लेसर अमाउंट बिकॉज द रिएक्शन इज स्लोअर, विल दिस रिजल्ट इन अ बिल्डअप? रिएक्टेंट का बिल्डअप हो जाएगा यहाँ पे? Yeah. यस, RuBp का यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। सो बिल्ड अप ऑफ, सो यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज रिएक्शन किस तरीके से होता था, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एंड जस्ट एनालाइज इट एट द टाइम व्हेन यू आर गिविंग द पेपर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थी RuBp से Gp। अगर फिक्सेशन कम हो रही है तो Gp कम प्रोड्यूस होगा, मतलब RuBp बिल्डअप होगा। इस तरीके से यू विल एनालाइज इट एट दैट मोमेंट ओनली। सो देयर इज अ बिल्डअप ऑफ RuBp एंड Gp भी कम प्रोड्यूस हुआ। Gp से वी प्रोड्यूस्ड Tp, सो ऑब्वियसली Tp भी फिर कम प्रोड्यूस हुआ। दैट इज इट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड की Sir, कंसंट्रेशन। just a general question. What is the full form of PGA? PGA, आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे अपने नोट्स में देखना पड़ेगा। Let me just check 1 second. I just remembered the short form for PGA. Okay, so I'll write it here. 1 second. PGA का full form is three, um, ये मैंने पेन से लिखा हुआ है, 3-phosphoglyceric acid. Right, this is PGA. But obviously हमारे syllabus में it's an unstable intermediate compound. Right. We'll talk about the last limiting factor, and this will be essentially, yes, this will be the last part of the chapter or the last point of the chapter, and then inshallah we'll begin with the topical past paper questions for photosynthesis. अगर मैंने टेम्परेचर को एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह ट्रीट किया एंड मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर गया, सो इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होगा? When I increase the temperature, you know there is a number of enzymes involved in entire photosynthesis, oxygen evolving complex हो गया, Rubisco हो गया. For now, we'll look at Rubisco. If the temperature is increasing, the enzyme will start. What will happen to the enzyme? अगर temperature बढ़ता है तो The enzyme's active site denatures. denatures. Correct. The enzyme starts to denature. अगर एंजाइम डीनेचर होता है तो द रेट ऑफ द एंजाइमेटिकली कंट्रोल रिएक्शन उसको क्या होता है? It decreases. It decreases. So rate of the enzymatically controlled reaction decreases. अगर ये रेट कम होता है of the enzymatically controlled reaction, which in the case of the Calvin cycle was RuBp plus carbon dioxide making PGA catalyzed by Rubisco, अगर ये स्लो हो जाता है दैट वुड मीन कि किस चीज का बिल्डअप हो रहा RUBP? है? RuBp, करेक्ट, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अगर रिएक्शन ही स्लो हो रहा है तो रिएक्टेंट का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, सो RuBp की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है बिकॉज देयर इज अ बिल्डअप, एंड ऑब्वियसली द कंसेंट्रेशन ऑफ Gp डिक्रीजेस क्योंकि वो कम बन रहा है।
अब GP से TP बनता है in the reduction stage. तो if the GP concentration decreases, triose phosphate concentration also decreases. Right, that would be it for this chapter. So if you have any questions, तो आप पूछ लो. No, it's clear. Right, so could you give a summary of what we did in today's class? Right. So basically, we learned about the limiting factors. We discussed that basically the limiting factors are the basically factors which are present in the lowest quantities, which will limit the rate of reaction. Right, and what are the for example, if light intensity is changing, then what will happen if the rate of reaction also changes? So would we consider light intensity as a limiting factor? If the rate, wait, okay, so basically if the factor is, if the factor is changing and the Yes, rate is not changing, then it's not a limiting factor. correct. And if the factor is changing and the rate is also changing, then It is a limiting factor. it is a limiting factor. और जो बाकी की चीजें थी in this remaining part of the topic was simply the चेन ऑफ इवेंट्स कि ये कम होता है, ये बढ़ जाता है, इसका बिल्डअप होता है, ये रिएक्शन स्लो हो जाता है, lesser products are produced, so lesser reactants are used, blah blah blah. तो ये these are simply analytical stuff which you can analyze on the spot itself. So I think that would be it, unless you have any more questions. Hello? Yes, sir. I'm here. Sorry, my father was also having a class, so it was just clashing. Right. So I was saying that that would be it, unless you have any more questions. No, I don't have any. All right. Thank you. Allah Hafiz.